everyone, welcome. In this session we would be focusing on the topic top 7 most important SQL commands. So I hope you guys are ready for this session. So without any further delay, let's start. अब सबसे पहले ये सेशन हमें क्यों करना ज़रूरी है. जनरली जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे होते हैं हमें वेरियस कमांड्स के बारे में पता चलता है, बट हमारे पास एक चीट शीट या फिर एक गो टू लिस्ट होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग सिंपल क्वेरीज या इंपॉर्टेंट क्वेरीज को इमिडिएटली रन कर सके, राइट. हमें सर्च ना करना पड़े. तो हम लोग ऐसी मस्ट नो एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो आपको आनी ज़रूरी है इफ़ यू आर वर्किंग विद द डेटाबेसेस. So I hope you guys have understood the importance. Now let's start with the topic. Now the first one is create table. Basically create table and create database दोनों ही काफ़ी important queries हैं. Database बनेगा तभी आप table create कर पाओगे, right? So इसमें हम लोग एक addition करते हैं /create database, right? सो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक डेटाबेस बनाओगे, राइट. डेटाबेस बनाने के बाद आप उसके अंदर जितने टेबल्स क्रिएट करना चाहते हो आप वो क्रिएट कर सकते हो, राइट. डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको लिखना है क्रिएट, ठीक है, डेटाबेस. देन यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, डेटाबेस नेम एंड देन अ सेमीकोलन. So basically create database कैसे होगा, create database name. Now the query that we were learning about is creating a table. So वो कैसे create होगा, create table name. अब table में हमारे पास काफ़ी सारी attributes होते हैं, right? और attributes का एक data type होता है. For example हम लोग यहाँ पे एक table लेते हैं sample के लिए. Just give me 1 minute. Let me make it. So let's say I have a table over here which is student. Okay, the name of the table is student. अब इसमें क्या क्या attributes हैं, ठीक है. इसमें एक attribute है roll number, okay, name, class, address, right. अब इसमें roll number can be an integer value, right, and it should be the primary key. Next we have name. This should be character or varchar, right, variable character. Next I have a class should be integer. Then I have address, right, again this can be char or varchar. Basically the more suitable one is varchar. Okay, so this is the table. So how can I create it, I need to write create table name which is student, and then I need to start circular brackets. Inside the circular brackets I would declare the name of the attributes with the data type. So let's see. Okay, so यहाँ पे क्या है, create table name, so I would write student, right. Next column 1 is over here roll, right, roll, and the data type is integer, right. Next I have name, okay, and name would be varchar, and then I need to specify the limit, so 30, okay. Next I can write over here class, right, and the data type for class is integer. So like this I can declare, or I can say create a table. So I hope it is clear. So this is a must know command. Now let's move forward. The next command is alter table. मैंने table तो बना लिया, but table में मुझे changes करने हैं, right? So then I need to know about the alter command. So let's start. Okay. So alter करने के लिए आपको क्या लिखना ज़रूरी है, alter table. आप टेबल को ही चेंज कर रहे हो, राइट. ऑल्टर टेबल नेम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ओके. देन ऐड, फॉर एग्जाम्पल आप ऑल्टर क्या कर रहे हो, आप ना उसमें एक कॉलम मतलब एक और एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो. वही हम लोग टेबल लेते हैं जो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस करा था. स्टूडेंट टेबल है, उसमें मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ, फादर्स नेम. सो देन ऐड कॉलम नेम क्या हो जाएगा, फादर, ओके, फादर लिख लेते हैं या फिर फादर नेम लिख लेते हैं. And data type would be varchar. So I hope it is clear. The alter command is clear. Now let's move forward to the next one. The next command is delete. तो अगर हम कुछ delete करना चाहे अपने टेबल में तो वो कैसे कर सकते हैं, again it is a very important command. So see, delete from table, okay.
सो बेसिकली डिलीट फ्रॉम टेबल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट टेबल से कुछ डिलीट करना है। मैंने अभी फादर नेम ऐड करा था, मुझे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, राइट। स्टूडेंट नेम वेयर कुछ कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे उन फादर्स के नाम डिलीट करने हैं जो बेसिकली यहाँ दिल्ली में नहीं रहते, ओके या फिर वी कैन से मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के डेटा को डिलीट करना है जो स्कूल को लीव कर चुके हैं, वो स्कूल में अब नहीं पढ़ते, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालूंगी, ओके एंड द वैल्यू जिस कंडीशन पे वो बेस्ड है। मैं क्या डिलीट कर रही हूँ टेबल से, मैं वो मेंशन करूंगी बेस्ड ऑन अ कंडीशन। आई होप द डिलीट कमांड इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप, ओके इट इज सिमिलर टू डिलीट ओनली। ओके सो ड्रॉप टेबल नेम, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट टेबल का अब काम नहीं है, मुझे स्टूडेंट टेबल में कुछ नहीं करना, सो देन आई कैन राइट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज इंसर्ट इनटू। जब हमने क्रिएट टेबल वाली कमांड पढ़ी थी, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा था। एट दैट टाइम आई ओनली क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर वेयर आई हैड नेम, class, roll number, then I have now father's name, right, and one more thing was there, that was address, right। अब इस टेबल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। अभी तो ये टेबल के अंदर की जो वैल्यूज है, जो टपल्स है, रोज है, वो एम्प्टी है, राइट। तो हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड यूज करके इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है राम, क्लास है 10th, रोल नंबर है 1, ठीक है, फादर्स नेम है श्याम, ओके एंड देन एड्रेस है XXXX, ओके। तो मुझे ये डेटा इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करके अपने टेबल में फिल करना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे क्या है, टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे क्योंकि पता है कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, तो जिस ऑर्डर में मैंने टेबल के एट्रीब्यूट्स को अरेंज करा है, जिस ऑर्डर में मैंने उन्हें डिक्लेयर करा है, उसी ऑर्डर में मैं वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करूंगी। मतलब अगर इस टेबल का मैं रेफरेंस लूँ तो सबसे पहले आएगा राम, कॉमा, देन क्लास आएगी 10, कॉमा, देन रोल नंबर आएगा 1, कॉमा, देन फादर नेम इज श्याम, देन कॉमा, then XXX, okay, so like this I can insert the first tuple into the student table. I hope it is clear। और जितनी आपको values insert करनी है, जितने tuples आपको fill करने हैं, आपको same way में command को बार बार change करके values को input देना पड़ेगा command का। So I hope it is clear। Now let's move forward। ओके तो एक तो मैंने आपको बता दिया इंसर्ट इनटू टेबल डालकर आपने डायरेक्टली वैल्यूज बता दी। दूसरा मेथड क्या होता है, 1 सेकेंड, लेट मी क्लीन इट अ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल आप उस ऑर्डर में नहीं डालना चाहते वैल्यूज जिस ऑर्डर में हमने टेबल को क्रिएट करा है, ठीक है, मैं वैल्यूज को उस ऑर्डर में नहीं डालना चाहती। सो द सेकेंड वे टू यूज द इंसर्ट कमांड इज, मैं स्पेसिफाई कर दूं कॉलम्स का ऑर्डर, चाहे वो मिक्स करके स्पेसिफाई कर दूं, और जो मैं नए कॉलम्स का ऑर्डर यहाँ स्पेसिफाई करूंगी उसी ऑर्डर में मुझे वैल्यूज को भी लिखना पड़ेगा। एक तो है कि मैंने जिस ऑर्डर में टेबल को क्रिएट करा है उसी ऑर्डर में वैल्यूज को इनपुट दे दूं, बट अगर मैं वो नहीं करना चाहती इन केस, तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉलम्स का ऑर्डर बताऊंगी जिस ऑर्डर में मैं वैल्यूज को इनपुट करना चाहती हूँ, और फिर इस ऑर्डर में, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं वैल्यूज को लिखूंगी। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज सिलेक्ट। सो बेसिकली सिलेक्ट कमांड हमें टेबल से डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करती है, राइट। सो लेट्स सी। ओके, सिलेक्ट कॉलम नेम, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। या फिर मुझे पूरे टेबल से पूरा टेबल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब इंटायर टेबल, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, तो मेरे लिए पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप द सिलेक्ट कमांड इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द लास्ट कमांड फॉर द डे इज अपडेट। अपडेट, आपको कुछ वैल्यूज में अपडेशन करनी है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम में फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे स्टूडेंट,
ठीक है, सेट, आप क्या सेट करना चाहते हो, मतलब कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, नेम की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ टू फर्स्ट नेम, ठीक है। इसमें मैं वेयर कंडीशन भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम चेंज करने हैं वेयर उनकी एज ग्रेटर है 10 से, ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो हम वेयर कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। बट आई होप द अपडेट कमांड इज क्लियर एंड विद दिस you are getting a better idea, right? So see, where some column some values, right? Update table name set, okay, where some column some values. For example table है student, ठीक है, मेरे को यहाँ पे set column let's say यहाँ पे जो name है column का name कर दो यहाँ पे श्याम, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे जो रोल नंबर है, जहाँ पे जो रोल नंबर है वो क्या है, रोल नंबर है 1। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने ये बोला है अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को, क्या चेंज करना है उसमें एक ऐसे कॉलम में जाओ जहाँ पे जो नेम की वैल्यू है ना वो श्याम है, ठीक है। उस कॉलम में आप जाओ और वहाँ पे यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू है 1 और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो नेम को श्याम में। सो बेसिकली जहाँ पे भी रोल नंबर होगा 1 टेबल में, वहाँ जाके वो नेम की वैल्यू को चेंज कर देंगे, चाहे कुछ भी नेम हो, राम हो, सुनीता हो, कुछ भी नेम हो, वो उसे चेंज कर देंगे श्याम में। कंडीशन रोल नंबर 1 को ढूंढेगी, सेट नेम को अपडेट करेगा और कौन से टेबल में करेगा, स्टूडेंट टेबल में। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट कमांड इज क्लियर एंड विद this session was helpful for all of you guys because you got to know about the top 7 must know commands of SQL. I hope this session was helpful and you guys have enjoyed this session. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel, and thank you so much everyone for joining me. Thank you.